आज जो लेसन है कंटिन्यू करेंगे 4.4 द अनसिंकेबल शिप. ठीक है. So a few questions I'm going to ask you just as a recap, क्योंकि we are in the middle of the lesson. आप मेरे को बताओ, what are the names of the three names of the ships taken in the lesson? What are the three names of the ships in the lesson? Just quickly recall, कौन से 3 नाम लिए गए हैं? कौन से 3 शिप्स हैं लेसन के अंदर? उनका क्या नाम है? टाइटैनिक. Good. Second? It starts with C. Both the names. किसी को याद नहीं है? पिछली बार हमने जब जो 3 नाम लिए थे शिप्स के, वो कौन कौन से थे? One was Titanic, the other was California, okay, and the third was Carpathia. तीसरा कौन सा है? कार्पेथिया. Carpathia. Okay, बेटा बोलो नहीं. Okay, which ship got drowned actually? Which ship got drowned? कौन सी शिप डूब गई थी? टाइटैनिक. Titanic. What was the reason? And what was the reason? What was the reason for drowning? डूबने का क्या रीजन था? हाँ बोलो क्योंकि बेटा. उनके सामने आइसबर्ग आया था. हाँ, so it was hit badly. It was badly hit by an iceberg. ठीक है? It was badly hit by an iceberg. How many people were on board? मतलब शिप के ऊपर कितने लोग थे? 2000. हाँ, it was more than 2000, a little more than 2004 something था figure, but so हम उसको बोल सकते हैं, if we are not exact, तो हम अपने लेसन, हम जब आंसर लिखेंगे तो हम we can always write कि a little more than 2000. ठीक है? And how many could be saved? 1500. नहीं, they got drowned बेटा. 1500 मतलब 1500 got drowned. ठीक है? And how many were saved? दिया है ये फिगर. 700. 700 could be saved. Yes ma'am. ठीक है? Because of the life saving boats. Okay? Okay, then tell me ki which ship could not hear the distress signal? कौन सी शिप ने डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं सुन पाया था? Which ship could not hear? It was close to Titanic, but it could not hear the signal. It was California. Okay? कैलिफोर्निया. ऋतुपूर्णा, आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? कैलिफोर्निया यस could मैम, not. मैं वही कह रही थी. हाँ, so California could not hear the distress signal. What was the reason? Now that reason is very big. Later on it was taken into consideration. ठीक है? बाद में उसको सोचा गया था. What was the reason why it could not hear the signal? There were 2 reasons. What were those 2 reasons? अपने फिंगर्स पे ऐसे करके याद किया करो बेटा. इवन इफ यू जस्ट रिमेम्बर अ वर्ड और टू, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. क्या था रीजन? नंबर 1 वाज देयर रेडियो सिग्नल रिकॉर्डर वाज ऑफ. जो रेडियो सिग्नल कैच करता ना, वो रिकॉर्डर ऑफ था उनका. इट वाज टर्न्ड ऑफ. एंड नंबर 2, द पर्सन हु वाज हैंडलिंग इट, ही वाज स्लीपिंग. तभी उनको डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं सुनाई दिया. ठीक है? आदम शेख, हर्षदा, समझ में आया बच्चा?
Yes, Yes. ma'am. ठीक है, तो दो रीजंस थे why it could not hear. Which ship carrying, which ship came closer to Titanic to save the people, but it took time. उसको टाइम लगा आने में. It took 3 hours. So what was the name of that ship which came to save Titanic and its people? कौन सी शिप आई थी, बताओ श्रुति. It was Carpathia. ठीक है, Carpathia was the ship which came close to Titanic, but it took 3 hours to reach Titanic. Okay, and by the time people had got drowned, either because of, I mean, they could not swim, that could be the reason, or secondly, जो कुर्सी टूटी या दरवाजा टूटा हुआ लकड़ी के ऊपर फ्लोट भी कर रहे थे, because the water was extremely cold, they could not survive. इतना ठंडा पानी था कि वो बच नहीं पाए. ओके, सो कैन वी रिज्यूम द लेसन नाउ. बेटा थोड़ा सा लेसन का ना एक बार व्हेन यू जॉइन, बिफोर जॉइनिंग जस्ट गिव अ क्विक रीकैप. थोड़ा सा अगर याद रहता है तो हमारे जवाब भी सही सही हो जाते हैं एकदम से. ठीक है, आई एम शेयरिंग द बुक नाउ. आप लोगों के पास अपनी किताब है बेटा? Yes, ma'am. गुड गुड. So we were on page number 93, I believe. जहाँ तक मुझे याद है, it was page number 93. Now you can see. Is it clear, बच्चे? आपको दिख रहा है ध्यान से? Yes, ma'am. Right. So we were here on this paragraph. Okay. The Carpathia arrived at 3:40 a.m. 3 घंटे बाद कार्पेथिया को सुनाई दिया था. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. Life saving जो boats थी वो बहुत कम थी ना, है ना? So and what was the reason? Yes, क्या रीजन था कि लाइफ बोट्स बहुत कम थी और अकॉर्डिंग टू दी रेशियो प्रोपोर्शन जितने लोग थे उसके ऊपर शिप पे ऑन बोर्ड, इट वाज नॉट द एग्जैक्ट नंबर. ऐसा क्यों था? मैम क्योंकि उनको लगता था हमारी बोट बहुत अच्छी कि वो डूब नहीं सकती, इसलिए. बोट नहीं बेटा, शिप नहीं डूबेगी, शिप. है ना? शिप बड़ी होती है, ज्यादा लोग उसमें ट्रेवल करते हैं, दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और जो बोट होती है वो छोटी साइज की होती है, राइट? बट लाइफ सेविंग बोट्स, आपने अगर शिप देखा होगा आप लोग तो समुद्र के पास, उसी के पास कि जो शिप होती है उसके आजू बाजू ना ऐसे हैंग करके रखते हैं लाइफ सेविंग बोट्स. अगर इन द केस ऑफ इन एक्सीजेंसीज और इमरजेंसीज, दे जस्ट लोअर इट onto the water surface और फिर वो उसके अंदर लोगों को बिठा के बचा के ले जाते हैं. बट यहाँ पर बहुत कम बोट्स थी, बिकॉज वो लोगों को ये लग रहा था कि टाइटैनिक तो अनसिंकेबल है. ओके, राइट? तो जो टूट के दरवाजे और खिड़कियां या वो जो भी फर्नीचर था लकड़ी का जो पानी में चला गया था, उसके ऊपर कुछ लोग फ्लोट कर रहे थे. कुछ बच भी गए थे उस वजह से, बट ज्यादातर लोग ठंडे पानी की वजह से, 2 रीजंस थे. ठंडा पानी बहुत ठंडा था एंड probably they did not know how to swim. Life saving jackets भी नहीं थी. They got drowned. Okay. The sinking, okay, but almost all of the people in water had drowned or died of cold. The Carpathia was too late to save them. The sinking of the ship, now I'm on this, the sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. ये हम जो किस्सा पढ़ रहे हैं, that is 1912, 1912 का है. ठीक है, that is long back, बहुत पहले की बात है. अब जो है शिप्स इस तरह की नहीं बनाई जाती हैं, उनके अंदर सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं. अब व्हाट वर दोज उस टाइम पे जब 1912 में जब टाइटैनिक डूबी, सो दे गेव मतलब दे थॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स. ठीक है, एंड टुक सम मेजर स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन. दे आस्क्ड व्हाई शिप कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स. सबसे पहला प्रश्न क्या आया दिमाग में? सबसे पहला प्रश्न क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम इनटू देयर माइंड? व्हाई वी हैव लेस लाइफ बोट्स.
it should be in proportion to the number of passengers traveling ना, जितने उसके अंदर passengers travel करे उस हिसाब से होना चाहिए ना, Yes, है ना, ma'am. right? So why there are few lifeboats and why they turn off their radios? And number 2 was, मैंने इसीलिए आपसे वो प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि why California could not hear the distress signal because they had switched off their radio system जो कि distress signal को pick करता है. Number 2, the person who was managing all that was sleeping, वो सो रहा था. Okay, so इस वजह से तो रेडियो सिग्नल हमेशा ऑन रहना चाहिए. एंड लाइफ सेविंग बोट्स जो है इट शुड बी इन प्रोपोर्शन इन अकॉर्डेंस टू दी पीपल traveling in that. In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. I hope इसकी मतलब समझिए आप लोग, समझ में आया बच्चे इस लाइफ का. 1913 है ना, ये डिसाइड किया गया था. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. For मतलब 24 hours तक, 24 घंटे वो ऑन रहना चाहिए रेडियो सिग्नल. अगर ये रेडियो सिग्नल ऑन होता तो टाइटैनिक शायद में जो लोग डूब के इतने सारे, सिर्फ 700 दे कुड सेव आउट ऑफ मोर देन 2000, तो हो सकता है ज्यादा लोग बच जाते, ये सारे बच जाते, या कुछ तो बच और भी बच सकते थे. ठीक है ना. In 1985, scientists sent a submarine. What is a submarine, beta? What is a submarine? मैम पनडुब्बी. पनडुब्बी. वेरी गुड. आपने उसकी पिक्चर देखी है पनडुब्बी की, है ना. वो चारों तरफ से बंद होती है, इट इज नॉट ओपन, ऊपर से ऐसे बंद होती है ऐसे. और जब वो पानी के अंदर जाती है तो अंदर का क्या है सब कुछ देख सकती है. सी बेड पे क्या है, मतलब अंडर वाटर क्या है, वो देख सकती है ना, राइट. तो ऐसी एक सबमरीन को 1985 में साइंटिस्ट्स ने यूज किया, वैज्ञानिकों ने, टू अंडरस्टैंड, टू लुक फॉर द wreck ऑफ द टाइटैनिक. वो नीचे गए 1985, मच लेटर, मतलब 1912 में ये किस्सा हुआ. 1985 में एक सबमरीन को लेके अंदर गए ये देखने के लिए कि शिप का क्या हाल है, टाइटैनिक का जो wreck का मतलब टूटी हुई शिप, टूटी हुई टाइटैनिक को देखने गए. They found the ship lying in 2 pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters. That is your 13,000 feet. 13,000 फीट नीचे उनको शिप के 2 टुकड़े मिले, जिसमें से आपको ध्यान है मैंने आपको शुरू में दिखाया था उस दिन, पिक्चर दिखाई थी टाइटैनिक की, है ना. वो रियल पिक्चर थी, वो नीचे से ली गई हुई पिक्चर थी सबमरीन से. तो उनको वो शिप के का टूटा हुआ 2 हिस्से दिखाई दिए. Later they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. उन्होंने उसकी कई पिक्चर्स दी हर एंगल से, और फिर उसके बाद कुछ कुछ चीजें उसमें, जैसे कोई ट्रेजर बॉक्स, किसी का कुछ कुछ बहुत चीजें पड़ी हुई थी बाहर. सो दे जस्ट गॉट इट, ब्रॉट इट टू दी सरफेस, उसको लेकर आए, ऊपर लेकर आए. नाउ द एंटायर शिप कैन नॉट बी ब्रॉट. रीजन बीइंग, वो इतना ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम, वो इतना वीक हो गया स्ट्रक्चर, वो इतना कमजोर हो गया बेटा, कि अगर उसको वो उठाने की भी कोशिश करते हैं तो जहां से भी उठाते हैं वो वहीं से टूट जाता है. ठीक है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है वो, राइट. सो जो चीजें छोटी मोटी जो ला सकते हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट एंड कीप इट इन द म्यूजियम सो दैट पीपल कैन सी. There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic maiden voyage. 1998 में इसके ऊपर मूवी बनी थी, एंड मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि एक मूवी बनी थी टाइटैनिक इसके ऊपर. कुछ मेजर, आई मीन 75% ऑफ दैट मूवी इज का जो दिखाया गया है दैट्स ट्रू. कुछ उन्होंने फिल्मी बना के रख दिया उसको. Anyways, so their main reason was they were trying to project the maiden voyage of Titanic. वो
जो what is maiden? I told you the meaning of maiden. Can someone recall quickly what is the meaning of maiden? चुप नहीं रहना है बेटा, बोलो ना. मैम एक बार फिर से पूछिए ना. मैंने कहा मेडन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है मेडन वॉयज? ये मैं इस वर्ड का मीनिंग आपसे जानना चाह रही हूँ, मुझे बताओ प्लीज. और ये हमने लेसन के शुरू में जब डिस्कशन कर रहे थे तब किया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडन? श्रुति, हर्षिदा, ऋतुपूर्णा, प्लीज बोलो. आदम शेख, क्या मतलब है मेडन का? मेडन होता है पहला, फर्स्ट, एंड वॉयज मतलब उसका यात्रा. वॉयज मतलब यात्रा. और याद है आपको मैंने वॉयज और जर्नी के बीच में डिफरेंस भी बताया था. यस और नो, याद है कि नहीं? हम कहाँ पे वॉयज वर्ड यूज करते हैं? जब हम समुद्र से यात्रा करते हैं तब हम वॉयज बोलते हैं, हम उसको जर्नी नहीं बोलते हैं. यस मैम. ठीक है ना? और मेडन का मतलब होती है सबसे पहला. मेडन का मतलब सबसे पहला. तो सबसे पहली समुद्री यात्रा, मेडन वॉयज. सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, सबसे पहली समुद्री यात्रा. सबसे पहली समुद्री यात्रा. ठीक है, अब बोलना नहीं बेटा. तो टाइटैनिक की इस समुद्री यात्रा, पहली समुद्री यात्रा के ऊपर जेम्स कैमरॉन ने एक मूवी बनाई थी टाइटैनिक के नाम से. इट इज अ वेरी सैड फिल्म ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग बच्चे नहीं थे. ऑलमोस्ट एवरीवन हु सीज द फिल्म लीव्स द सिनेमा इन टीयर्स. टीयर्स का मतलब आंसू में रोता हुआ. जब भी आते हैं मूवी देखते हैं तो आई मीन यू बिकम सैड. इतना सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा पोर्शन ऑफ द लेसन पहले वाला या बाद में जो आपको नहीं समझ आया? यू कैन आस्क मी राइट नाउ. समझ में आया बच्चे? यस मैम. Yes, ma'am. Find any 6 words. We are doing the exercise. Find any 6 words. 6 ऐसे word ढूंढो from the text that have suffixes. Now remember we did prefix and suffix. Prefix Yes, क्या ma'am. होता है? जो शब्द से प्री मतलब पहले लगता है ना? सफिक्स क्या है? जो बाद में लगता है. और बड़ा आसान है याद रखना. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी. पी पहले आता है ना, क्यू आर एस टी, एस बाद में आता है. तो हम प्रीफिक्स पी पहले आता है तो हम उसको शब्द से पहले जो आते हैं अक्षर उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं. और बाद में आते हैं सफिक्स, एस बाद में आता है तो हम उसको सफिक्स बोलते हैं. समझ आया? याद है ना? ओके. तो ऐसे आप शब्द ढूंढो जिनके अंदर वी हैव सफिक्सेस, जो बाद में कुछ लगा हुआ है उनमें. मैम स्टोरीज. 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 ओके, IES प्लूरल बना दिया आपने, राइट? ओके. आप और Ma'am, वर्ड्स news. ढूंढो, और वर्ड्स ढूंढो. Leaves. हाँ जी बेटा. Leaves. व्यूज. Leaves, ma'am. Leaves. न्यूज में नहीं हो सकता बेटा. सफिक्स Ma'am, हम news बोला leaves. Yes. चित्रा, आपका चित्रा के नाम से कौन था ये? ऋतुपर्णा तांबोळी. ऋतुपूर्ण. अच्छा, आप दूसरे से अब आप आ गए हो. ओके. तो ऋतुपूर्ण, डोंट पिक अप द वर्ड्स. उसके आगे एबल या ING क्या क्या लगा हुआ है बताओ. ऐसे वर्ड्स ढूंढो. Ma'am. अब मैं आपको ढूंढो, आप मैं लेके जा रही हूँ ऊपर. Asking. मैम डायरेक्टर. 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 ओके, OR लगा दिया आपने. पर इससे अलावा और क्या हो सकता है? ये आपने वर्ड देखा है, थिंकिंग. कैन यू सी द वर्ड? पहले ये वर्ड देखो कि
बेटा? Yes, ma'am. कैन यू सी द वर्ड सिंकिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको अगर हम जैसे आप संधि विच्छेद करते हो अगर हम करें तो सिंक मेन रूट वर्ड क्या है, इसमें मेन वर्ड क्या है? Sink. Sink. सिंक है। और हमने उसमें क्या लगा दिया? IN. आईएनजी लगा दिया। ओके ओके, अभी और वर्ड्स देखते हैं हम यहाँ पर कहीं पे जो थोड़ी इजी रहे हैं आपके लिए। ओके, ये है। अभी मैं सिर्फ जितना वर्ड हाईलाइट कर रही हूं आप उसको देखना, ठीक है? ये यूएन को मत देखना, जितना मैंने हाईलाइट किया है वर्ड, सिर्फ लुक एट दिस वर्ड। अब जो मूल वर्ड हमने अभी बोला सिंक, उसके आगे क्या लग गया है? Able. एबल। सिंकेबल, हम अनसिंकेबल होता है उसका ऑपोजिट बना दिया, बट अगर सिंक के आगे हम ABLE लगाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? सिंकेबल, डूबना. राइट? अब यहाँ पे देखो ये वाला वर्ड, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये वाला वर्ड देखो, Yes, ma'am. इसमें क्या है मूल वर्ड, रूट वर्ड क्या है? व्हाट इज द रूट वर्ड? Flood. फ्लड। और उसमें क्या लगा दिया हमने? IN. आईएनजी। वेरी गुड। ओके, अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ये मैंने वर्ड्स हाईलाइट तो कर दिए हैं। नहीं, समथिंग आइसबर्ग नहीं हो सकते। Ma'am, comfortable. या ये देखो ये वर्ड बिल्डर्स। And मैम ट्रैवलिंग भी होगा. हाँ, ट्रेवलिंग। वेयर इज इट बेटा? स्विमिंग। ओह ग्रेट, वी हैव अनदर वर्ड, स्विमिंग। Ma'am, comfortable भी होगा. एबल, वेरी गुड। कंफर्ट इज द मूल वर्ड, रूट वर्ड, एंड उसमें हमने क्या लगा दिया? ABLE, एबल। तो अब समझ में आया आप लोगों को सफिक्सेस? सो लाइक Yes, दिस ma'am. यू कैन फाइंड आउट। सॉरी, आगे चलेगी मैं। ऐसे आप कोई भी 6 वर्ड ढूंढ के, अभी हमने ढूंढ लिए हैं 5 तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 वर्ड्स में कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। हम 2 शब्दों को ज्वाइन करके एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है? तो वो एंड दैट चेंजेस द मीनिंग ऑल्सो। तो उन 2 वर्ड्स के मीनिंग अपने अपने में कुछ और होते हैं, और जब हम उनको जोड़ देते हैं बेटा तो एक नया शब्द बन जाता है। होता है कि नहीं होता? लाइक मैं बोलती हूँ आइस, नहीं, ऐसे लाइफ बोट्स, इसके अंदर वर्ड है ना लाइफ सेविंग बोट्स, ठीक है ना? तो अगर Yes, मैं ma'am. लाइफ एंड सेविंग, लाइफ सेविंग कुछ भी हो सकता है, बोट्स भी हो सकती हैं, जैकेट्स भी हो सकता है। अगर मैं लाइफ एंड सेविंग को ज्वाइन कर देती हूँ तो लाइफ मतलब अपनी जिंदगी, है ना? एंड सेविंग का मतलब बचाना, तो लाइफ सेविंग हो गया। और इस तरह के वर्ड उन्होंने दिए। एवरीथिंग, एवरी मतलब हर एक, थिंग मतलब चीज। अब हर एक, एवरी और थिंग को जब हमने जोड़ दिया तो हमारे पास एक नया वर्ड बन गया एवरीथिंग, और इसका मतलब क्या हुआ? हर एक चीज, ठीक है? तो हाइफन कहते हैं बेटा, जो अगर हम कभी भी 2 शब्दों को इस तरह से हम जोड़ते हैं ना बेटा, जैसे लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल। अब ये अगर हमने, आप देखो ये 2 शब्द, स्किल्स एक शब्द हुआ, लाइफ एक शब्द हुआ, और जब हम दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो हम इसके बीच में हाइफन लगाते हैं। ये चिन्ह देख रहे हो आप बीच में? कैन यू सी दिस सिंबल? ये जो एक छोटा सा ये बीच में जो बना हुआ चिन्ह है, लाइफ और स्किल को जोड़ता हुआ, Yes, ma'am. है ना? तो इसको बोलते हैं हम हाइफन। व्हाट इज इट कॉल्ड बेटा? इट्स कॉल्ड हाइफन। जैसे हम फुल स्टॉप की बात करते हैं, क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं, एक्सक्लेमेशन की बात करते हैं कि नहीं करते? हम पंक्चुएट करते हैं जब हम पंक्चुएशन करते हैं। पंक्चुएशन का मतलब जब हम कोई, सपोज हमें देखना है कहाँ पे कैपिटल आएगा, कहाँ पे स्मॉल आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ पे इन्वर्टेड आएगा, कहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे सेमी कोलन आएगा, है ना? सो ऐसे ही हाइफन भी होता है एक चिन्ह, जो कि 2 इंडिपेंडेंट शब्दों को जोड़ता है। समझ गए? ठीक Yes, है, ma'am. राइट। तो हमारा लाइफ जो था
दैट इज वन, एंड देन स्किल्स दूसरा हो गया। ऐसे ही वो बोल रहे हैं आप 4-5 ऐसे कंपाउंड वर्ड्स अपने लेसन में से ढूंढो। एक तो एवरी डे। लाइफ, एवरी डे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं बताऊं, लाइफ बोट्स, जो लाइफ बोट्स नहीं है जो बोलते हैं वो, तो लाइफ एंड बोट्स दोनों को जोड़ दिया हाइफन से हमने, तो बन गया लाइफ बोट्स। फिर है एक और वर्ड है आइस कोल्ड। आइस मतलब बर्फ, कोल्ड का मतलब ठंडा, दोनों को जोड़ा किससे, किससे जोड़ा, हाइफन से। समझे बेटा? Yes, ma'am. नाउ Yes, टेल मी अनदर वर्ड। दोनों का मतलब अलग अलग होना चाहिए, और फिर जब दोनों को जोड़ो तो एक मतलब निकलना चाहिए। अब आप मुझे ऐसे जल्दी से ढूंढ के बताओ, यू ऑल हैव योर बुक्स, एक वर्ड एक वर्ड ऐसा और ढूंढ के दो मुझे। अभी हमने एक वर्ड को फर्स्ट सफिक्स अंडरलाइन किया था जब मैं ऊपर स्क्रॉल करके ले गई थी। राउंड। ड्राउन नहीं बेटा, ड्राउन तो नहीं होगा। अभी मैं सफिक्स की बात नहीं कर रही, जब मैं सफिक्स ढूंढ रहे थे हम तब एक ऐसा वर्ड था ऊपर। और वो वर्ड ये बता रहा है कि टाइटैनिक शिप के ऊपर वो चीज थी, मतलब दैट वाज देयर अदर देन लाइफ बोट्स ऑफ कोर्स। स्विमिंग पूल ध्यान है आपको? अभी मैंने स्विमिंग वर्ड अंडरलाइन हाईलाइट किया था। यस मैम। तो वहां पे क्या था, स्विमिंग पूल थे। Cleaning rooms. हाँ, टाइटैनिक वाज अ लग्जरी शिप, ठीक है, वो एक लग्जरी शिप थी, उसमें सारे ऐशो आराम। तो स्विमिंग Dining. एंड, हाँ जी बोलो बेटा, यू सेइंग समथिंग। हर्षिता आप कुछ बोल रहे थे बेटा? नो मैम। डिनिंग रूम्स। हाँ, Dining. डिनिंग रूम। बीमिंग कह रहे हैं आप? हर्षिता, डिनिंग can you रूम। write in the chat box? Can you write in the chat box, हर्षिता? आपका वॉइस क्लियर नहीं है बच्चा। ओके, आप लिखो तब तक मैं वो आ जाएगा, दिख जाएगा मुझे। राइट, देन देयर इज रेडियो ऑपरेटर है, रेडियो सिग्नल है, रेडियो एंड सिग्नल, रेडियो एंड ऑपरेटर, बीच में हाइफन लगा दिया उन्होंने, है ना? तो ऐसे आप वर्ड्स ढूंढ पाओगे बेटा? Yes, ma'am. इट्स इजी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हर्षिता आपका आया नहीं। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर, व्हाट डज द वर्ड टाइटैनिक मीन? और हमने पता टाइटैनिक का क्या मतलब है, Ma'am, use. ह्यूज। हाँ, ह्यूज, और बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब इट वाज बिग शिप, राइट? एंड अच्छा, अब मैं इससे पूछती हूँ आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारपेथिया? कारपेथिया का भी मतलब है, जो शिप बचाने नहीं आई थी टाइटैनिक को, उसका कारपेथिया नाम था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड कारपेथिया? इट मीन्स स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग। सो टाइटैनिक का क्या मतलब है? ह्यूज, बहुत बड़ा। एंड कारपेथिया का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पैसेंजर्स डिड टाइटैनिक कैरी? कितने पैसेंजर्स थे? अभी हमने डिस्कस किया था। 2000. Then more. मोर नहीं, हम देन मोर नहीं बेटा, मोर देन 2000। सब लोग बोलो मोर देन More. मोर देन 2000। ठीक है, 2000. उसके बाद हाँ, वाई वर पैसेंजर्स ऑन टाइटैनिक प्राउड? टाइटैनिक के जो पैसेंजर्स थे, वाई डिड दे फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स? ऐसा उनका क्या लग रहा था कि हम बहुत गर्वित हैं, क्यों हम टाइटैनिक पर हैं? ऐसा क्या रीजन था? व्हाट वाज द Ma'am. रीजन? Ma'am, क्या मैं बोलो? बताऊं? हाँ बताओ अनुष्का। Yes, ma'am. Because they were traveling in the best ship in the world.
Yes, it was one of the finest, I can say, one of the finest and best ship that they were traveling, they were on board. Okay? So they were very, very proud of themselves. Why did people call Titanic an unsinkable ship? टाइटैनिक को अनसिंकेबल क्यों कहा गया था? क्यों अनसिंकेबल था? Ma'am, because they thought that it could never sink. ना, they thought it could never sink. उसके अंदर अब they have not mentioned it here, but उसके अंदर जो है बिल्कुल ही वाटर प्रूफ वो बनाए गए थे, कुछ केबिन्स बनाए गए थे. सो जब लोग जिन रूम्स जैसे होते हैं ना अंदर शिप के ऊपर छोटे छोटे केबिन्स बनाते हैं, वो सारे दे वो वाटर प्रूफ. अगर शिप को कुछ होता भी तो अंदर जो था उसको कुछ नहीं होता, वो नहीं उसकी वो मरता, ठीक है, और उसकी डेथ नहीं होती. बट फिर भी ये टूट गई शिप. सो दे हैड सर्टेन मेजर्स, जो कि सेफ्टी मेजर्स. सो दे वर वेरी कॉम्प्लिसेंट अबाउट इट. मतलब वो बहुत ये सोच चुके थे दिमाग में कि ये शिप डूबेगी ही नहीं. ओके. Then, what did Carpathia crew find? Oh, ma'am, they found urgent message of the Titanic asking for help. Yeah, they found the urgent message also. And when they came closer to the ship, what did they discover? जब वो शिप के पास आए, जो भी टूटा हुआ हिस्सा जो अंदर जा रहा था बाकी का, जब उसके पास आए, what did they discover? That people had already, they got drowned. People, they got drowned. बचे नहीं थे. जब शिप पास में आई थी तो सबसे पहले they got the urgent signal, and when they came closer to the ship, people had got drowned. ठीक है ना? Yes, Then ma'am. what did Carpathia, sorry, where were we? Who was the director of the film based on Titanic's maiden voyage? Who was the director of the film based on Titanic's maiden voyage? किसने बनाई थी? बताओ. Ma'am, James Cameron. Yes, very good. नाम याद रखो बेटा. And where did the scientists find the Titanic? जब वो सबमरीन से पनडुब्बी से अंदर गए, तो where did they find the Titanic? कहाँ पे थी टाइटैनिक टूट के? Where did the scientist, वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक को कहाँ देखा? Ocean floor. Ocean floor, right. On the ocean floor. How deep it was? 4,000 meters. 4,000 meters या 13,000 I think feet. दिया हुआ है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now discuss तो क्या करना है ये बताओ. Reasons. What were the reasons for the ship to get drowned? Reasons for the sinking of Titanic. क्या reason था for the ship to drown? ये एक क्वेश्चन अलग से आ सकता है. क्या रीजन था that the ship got drowned? हम आपके 4 फिंगर्स अपने ऐसे रखो so that you remember it. पहला रीजन क्या था? The ship was moving too fast. शिप बहुत तेजी से चल रही थी. Yes. Number 2, it hit the iceberg. उसने एक आइसबर्ग से वो टकरा गई थी, उसके साइड टकरा गए थे. Number 3, it was the radio was off. The radio signal was off. ठीक है, तो नहीं, वो जब डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा तो जिसको भेजा उसका भी रेडियो सिस्टम बंद था.
This radio signal was turned off. Radio was turned off. Number 4 was it was there were not enough life-saving boats. There were not enough life-saving boats. समझ गए बेटा 4 reasons? Yes, ma'am. And then what was the effects of the sinking of the Titanic? तो फिर उसका क्या इफेक्ट हुआ? What was the effects? What were the effects? Sorry. क्या डिसाइड किया? टाइटैनिक सिंक हो गया और सब मर गए. नहीं. इफेक्ट्स जब ये ऐसा हो गया तो फिर क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए? रीजन पता चल गया कि क्यों शिप डूबी. अब ये बताओ कि उसका इफेक्ट क्या था, बाद में क्या डिसीजंस लिए गए ऐसी चीजें ना हो इन फ्यूचर, उनको ठीक करने के लिए. व्हाट स्टेप्स वर टेकन? यहाँ पे इफेक्ट लिखा हुआ है कि जब शिप डूब गई तो इसका क्या लोगों के मनस्थिति, उनके मानसिक उस पर क्या असर हुआ, उन्होंने क्या सोचा क्या होना चाहिए. अब न्यू रूल्स बनाए गए थे. न्यू रूल्स वर मेड. वो कौन से न्यू रूल्स थे? व्हाट वर दोस 2 न्यू रूल्स? अभी हमने 4 रीजंस ढूंढे शिप के डूबने के. अब 2 बताओ मुझे इफेक्ट्स की, वो कौन से 2 इफेक्ट थे? क्या डिसीजंस लिए गए कि आगे से कोई भी शिप ना डूबे? व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट शुड बी डन? बताओ बेटा जल्दी से. कौन सी 2 चीजें डिसाइड की गई कि शिप आगे से ना डूबे, और अगर डूब जाती है तो लोग कैसे बचें? अच्छा, लोग क्यों डूबे थे टाइटैनिक में? क्या रीजन था बताओ. लाइफ सेविंग बोट्स नहीं थी ना उसमें ज्यादा. यस मैम. यही हमने पढ़ा ना कि लाइफ सेविंग बोट्स, अगर लाइफ सेविंग बोट्स होती तो लोग तो नहीं डूबते. चलो शिप डूब जाती, लोग तो बच जाते जो उसमें ट्रेवल कर रहे थे. यस है ना? मैम. तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? हम ये बोलेंगे कि उन्होंने जो 2 चीजें सोची वो ये था, एक तो रेडियो सिग्नल विल नेवर बी स्विच्ड ऑफ. रेडियो जो सिस्टम है उनका, इट शुड रिमेन ऑन फॉर 24 आवर्स. ठीक है. एंड दूसरा, वी शुड हैव मोर लाइफ सेविंग बोट्स. अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सब लोगों को बचा सकें, लाइफ सेविंग बोट्स ज्यादा होनी चाहिए. यही 2 रीजन थे टाइटैनिक डूबी, और यही 2 चीजें उन्होंने बाद में सोची. समझ गए बेटा? यस मैम. ठीक है. ओके. अभी वो बोल रहे हैं कि रीड एंड फाइंड सम वर्ड्स रिलेटेड टू सी. आपके लेसन में जो वर्ड्स उन्होंने पिक करे, मतलब बोले हैं रिलेटेड टू सी, तो वो आप उसकी एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप उसको वो बनाओ, इसका मतलब एक लिस्ट बनाओ. तो आई थिंक ये तो आप इजीली कर सकते हो. कर सकते हो कि नहीं? यस मैम. ओके. वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है. शी वाज आस्क्ड. अभी आपने ये सुना है एज टॉल एज बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज. ये एक लाइन यूज करी है आपके लेसन में. शी वॉज एज टॉल एज, वो कितनी ऊंची थी हाइट में? जो टाइटैनिक थी कितनी ऊंची थी? जैसे कि 15 माले की बिल्डिंग हो, 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग होती है ना. यस मैम. तो जो शिप थी उसकी ऊंचाई कितनी थी बेटा? इट वॉज एज टॉल एज, बताओ बेटा आप. इट वॉज 15 एज 15 फ्लोर्स. यस. तो हम लोग जब कभी किसी को बोलते हैं ना, हम कंपैरिजन करते हैं. जब हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं, आपको ध्यान है जब हम पोम्स कर रहे थे तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, सिमिली. दैट इज अ पोएटिक डिवाइस जिसके अंदर हम लाइक एंड एज यूज करते हैं.
जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं तो हम कौन से दो शब्द यूज करते हैं सिमिली में? लाइक या एज? क्या यूज करते हैं बेटा? कौन से दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं? मैम छोटा बड़ा। नहीं नहीं नहीं, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं बेटा, तब हम कौन से दो शब्दों को यूज करते हैं? या तो हम बोलते हैं शी इज एज टॉल एज हर मदर, और शी इज टॉल लाइक हर मदर, हम बोलते हैं ना। वो उतनी ऊंची है हाइट में जितनी उसकी माँ है। एज और लाइक। एज एंड लाइक करते हैं ना, मैं वही तो पूछ रही हूँ मेरे बेटा। तो हम जब यहाँ पर वो बात कर रहा है लाइक एज एंड एज की, एज टॉल एज, क्योंकि उसने ये एक्सप्रेशन यूज किया है आपकी लेसन में, टू कंपेयर या टू टेल यू कि टाइटैनिक कितनी ऊंची थी। कितनी ऊंची थी? उतनी ऊंची थी जितनी की 15 फ्लोर्स का घर होता है, आई मीन बिल्डिंग होती है, सॉरी। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे आप कुछ सेंटेंसेस बनाओ जिसके अंदर आप एज एंड एज यूज कर सको या लाइक यूज कर सको। जैसे मैंने एक बनाया, शी इज एज ब्रेव एज अ लायन। शी इज एज ब्रेव एज अ लायन का क्या मतलब है? बताओ बच्चा। शी इज एज ब्रेव एज अ लायन का क्या मतलब है? वो शेर तो नहीं है ना, पर वो क्या है शेर की जैसी? मैम वो शेर की जैसी ब्रेव है। हाँ, अब आप बनाओ मुझे एक ऐसी सेंटेंस बनाओ क्विकली। मेक वन सेंटेंस यूजिंग एज एंड एज। मैम शी इज फास्ट एज ट्रेन। शी इज एज फास्ट एज ट्रेन। ओके, इन रनिंग, इन रनिंग ना? यस ओके, मैम। और ये मतलब ये भी तो स्पेसिफाई करो किसमें। अभी और बनाओ, बताओ। The baby is as soft as as cotton, as cotton. Cotton क्या होता है? रुई। The baby is as soft as cotton. ठीक है, और यस कोई मैम। अदर देन अनुष्का कोई और बच्चा बताए मुझे। बाकी बच्चे चुप नहीं रहेंगे बेटा, प्लीज। और कोई एक और बना दो, फिर बाकी आप अपने एक्सरसाइज करते हुए कर सकते हो। टॉल को लेके बना दो, चलो। अभी मैंने एक तो बनाया था ना, तो ऐसी सिमिलर एक और बना दो। Shruti, can you make one sentence with as and as? Shruti? Okay, I can say this boy is as tall as his father. है ना? This boy is as tall as his father. ये लड़का उतना ऊंचा है हाइट में जितना उसका फादर है। उतना है, जितना। उतना एज एंड एज का मतलब उतना, जितना, हिंदी में। The water was as cold as ice. पानी उतना ठंडा है जितना आइस होता है, जितनी बर्फ होती है। उतना एंड जितना। उतना मतलब कितना, जितना। समझ गए? द वाटर इज एज कोल्ड एज आइस। यस मैम। ठीक है, आप बना लोगे इस तरह से? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, इसी होता है बेटा टू एंड टू। टू एंड टू, ये भी आपके प्रेपोजिशंस किए हैं आप लोगों ने स्कूल में? प्रेपोजिशंस किए?
यस मैम। है ना। तो वो क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन को आपके बाकी सेंटेंस से जो जोड़ते हैं, नाउन या प्रोनाउन को, संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ते हैं, वो शब्द को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं, जो जोड़ते हैं आपके बाकी सेंटेंस के हिस्से से। ठीक है। सो उसमें टू भी आता है, राइट, टू वर्ड्स आता है ना। तो यहां पर लिया गया है टू एंड टू। टू का मतलब भी, एंड टू इज हिंदी में क्या बोलते हैं, को। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, को, उसको दो, है ना। आपने ये दोनों में डिफरेंस पता है ना, टू एंड टू में, यस मैम। राइट। तो बोले द कारपेथिया वॉज टू लेट टू सेव देम। कारपेथिया बहुत लेट हो गई थी उनको बचाने में। ऐसे ही आप 3 सेंटेंसेस बनाओ जिसमें टू एंड टू दोनों आए। अगर मैं बोलती हूँ द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। लिफ्ट मतलब उठाने के लिए। बॉक्स इज टू हैवी। बॉक्स जो है बहुत हैवी है। बहुत हैवी है किसके लिए, उठाने के लिए। टू टू। ऐसे ही बनाओ एक सेंटेंस। चलो मैम मैं एक बताती हूँ। हाँ द बताओ बच्चे। एलिफेंट इज टू बिग टू रन फास्ट। ओ वेरी गुड, वेरी गुड अनुष्का। इट्स टू बिग टू रन फास्ट। वेरी गुड अनुष्का। बेटा बाकी बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं, चुप नहीं रहना है किसी ने भी। ऋतुपूर्णा, अच्छा आप एक बना के दो मुझे टू एंड टू से। श्रुति मैम बेटा, रिपीट कीजिए। मैंने कहा टू एंड टू से जोड़ के बताओ एक शब्द, सॉरी एक सेंटेंस बनाओ। अनुष्का हैज रेज्ड हैंड, अभी रुको। अनुष्का बताओ बेटा। आई कैन से ही इज टू टायर्ड टू रन। ही इज टू टायर्ड टू रन। वो बहुत थका हुआ है भागने के लिए। किसके लिए, भागने के लिए। ही इज टू टायर्ड। द मैम बॉक्स शी इज, इज टू टायर्ड टू स्टडी। शी इज टू टायर्ड टू स्टडी। वेरी गुड ऋतुपूर्णा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आप समझ रहे हो एज एंड एज, टू एंड टू। प्लीज प्रैक्टिस करो बेटा इसकी। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजीली आपके स्कूल में एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, राइट, ओके मैम। या वेरी गुड। ओके, ये तो पैराग्राफ राइटिंग है। इसके कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं एंड हाउ इट हैज टू बी रिटन। The Carpathia was too late to save them. Read again from the 5th paragraph, and then came the night of 14th April up to 12th paragraph. Mark the most important points. Using the points, make a summary of the incident in your own words. Summary मतलब पूरा आपको ऐसा देते हैं एग्जाम में कि कोई पैराग्राफ दें और फिर बोलते हैं उसका समरी लिखो। बोलते हैं बेटा, कोई आपका किताब पुस्तक में से, कोई लेसन में से आपको पैराग्राफ देके बोलते हैं कि इसका समरी लिखो। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज समरी? समझ में समझते हो ना बेटा? इसका सारांश लिखना ना। सारांश, यस यस, वेरी गुड, सारांश। ठीक है ना। तो सारांश लिखने के लिए बेटा आपको ये बताया होगा कि एक तो आप उसको टॉपिक देते हो कि क्या किस चीज यस की बात कर रहे हैं ना। फिर उसके अंदर जो बेकार की चीजें हम उनको नहीं बोलते, हम सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ हम उसको डिस्कस करते हैं। और डिस्कस क्या करते हैं मतलब उसी को हम कुछ लाइनों में, संक्षिप्त में हम उसको लिखते हैं। अगर आपका पैराग्राफ में 8 लाइंस हैं तो हम उसको कंप्रेस करके वी मेक इट इनटू 3 लाइंस और मैक्सिमम 4 लाइंस, इससे ज्यादा नहीं, यस है मैम। ना। तो हम उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स उठाते हैं, हम जो आलतू फालतू की बातें हैं वो नहीं करते हैं।
ठीक है, चलो इसके हम प्रैक्टिस जरूर रखेंगे और एक में भेज भी दूंगी ऐसा बना के। दी सेंटेंसेस नाउ आपने 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करें, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आई थिंक वी हैव डन इट अर्लियर आल्सो। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ना, यस मैम। है ना। तो जो सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट होता है, वो अपने में इंडिपेंडेंट होता है, पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। जैसे उन्होंने बोला शी वेंट होम, वो घर गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कोई और मतलब दिख रहा है? एक ही मतलब, एक ही मीनिंग मत पता चल रहा है ना, कि वो घर गई, शी वेंट होम, ठीक है। शी विल बी और सब्जेक्ट, वो एक ही सब्जेक्ट है तुम्हारा, बाकी वेंट होम हो गया प्रेडिकेट। या शी इज गोइंग होम, ये भी एक है। शी विल गो होम, ये भी एक है। इसी को हम अलग अलग तरीके से मैं बोल रही हूँ, समझ रहे हो बेटा। तो सिंपल सेंटेंस हैज गॉट जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। अब मेरे को एक बात बताओ, कंपाउंड सेंटेंसेस पहले बताओ कौन से होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस कोई भी कोशिश करेगा बताने की? व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस? जब हम एक ही आइडिया की बात करते हैं ना, जब हम एक ही आइडिया की बात करते हैं तो वो सिंपल होता है। जब हम एक से दो आइडिया की बात करते हैं तब हम क्या होता है बेटा? कंपाउंड। जब हम दो आइडिया की बात करते हैं ना तो क्या होता है बेटा? कंपाउंड। और इसमें हम, हाँ, और उनको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं एंड, बट, येट और सो। क्या यूज करते हैं? एंड, बट, येट और सो। आप लोग बोलो, एकदम रिदमिकल है, अगर आप इसको 2-4 बार बोलोगे याद रखोगे। एंड, बट, येट और सो, और, ओ आर, और या सो। एंड बट सो और नॉर। नो नो सॉरी मैम। एंड, बट, येट, YET, येट, और, OR, और, SO, सो। ठीक है, मैं ये भी लिख के भेज दूंगी आपको सो दैट आप लोगों को याद हो जाए। सो जब बस दिमाग में ये रखो कि जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं और वो हमें एक चीज का बात करता है तो हम उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। एक है, जैसे उन्होंने बोला इन द मॉर्निंग नियर माई स्कूल आई सॉ स्नेक। अब वो एक ही बात कर रहा है ना, सुबह के समय मेरे स्कूल के पास एक स्नेक देखा गया। उसने एक ही बात करी ना, एक ही बात कर रहे हैं ना। तो जब हम कोई भी एक बात करते हैं ना बेटा, तो हम उसको सिंपल सेंटेंस करते हैं, जो आई मीन काउंट करते हैं। लेकिन जब हम दो बातों की बात करते हैं और दोनों को जोड़ने के लिए हम सब ये एंड, बट, येट और सो का यूज करते हैं, जो मैंने अभी बताया, तो हम उनको कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक है। यस। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर एक तो सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल पूरा होता है अपने के अंदर, ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस होता है ना बेटा, वो जो पूर्ण होता है सेंटेंस, उसके ऊपर निर्भर करता है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये है शी वेंट होम, वो घर गई। अभी हमने यहाँ पे शी वेंट होम जब से पढ़ा तो हमें ये पता था कि ये सिंपल है, ये एक ही आइडिया हमको दे रहा है और ये सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर है शी वेंट होम आफ्टर स्कूल वॉज ओवर। अब आफ्टर स्कूल वॉज ओवर का क्या मतलब हुआ? क्या ये आफ्टर स्कूल वॉज ओवर अपने में पूर्ण है? अपने में पूर्ण है? अगर मैं शी वेंट होम हटा देती हूँ और बोलती हूँ आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, तो आप बोलोगे क्या मैम, है ना? बोलोगे कि नहीं? हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या, किसकी बात हो रही है, क्या कहना चाह रहे हो?
होता है ना? यस मैम। ठीक है, तो अपने मीनिंग को बेटा पूरा करने के लिए किसके ऊपर निर्धारित है ये? किसके ऊपर निर्भर है? सॉरी, निर्धारित नहीं, निर्भर है। किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे पास एक ही यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ना, है ना? तो शी वेंट होम, वो घर गई। कब गई? जब स्कूल हो गया था, पूरा हो गया था, स्कूल खत्म हो गया था, उसके बाद वो गई। तो हम जब ये पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तभी हमें इसका मतलब समझ आता है ना बेटा। जितना मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, क्या आपको समझ में आ रहा है आफ्टर स्कूल वॉज ओवर का क्या मतलब है? आ रहा है Yes. समझ? नहीं आता ना? अगर मैं ये पूरा सेंटेंस बोलती हूँ, शी वेंट होम आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, तो इसका मतलब समझ आता है ना? यस मैम। तो इससे ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस। देखो, हम अपनी फ्रेंड से जब बात करते हैं और हमारी फ्रेंड कुछ घुमा फिरा के कोई बात करती है जो हमें समझ नहीं आती है, तो हम बोलते हैं ना, इतनी कॉम्प्लेक्स बात मत कर, है ना, समझ नहीं आ रहा, ठीक ठीक बता क्या बोलना चाह रही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स बात मत बोल? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा वो बात, आधी अधूरी सी बात कर रही है। पूरी बात बोलेगी तभी तो समझ आएगी ना। तो हम यही चीज यहाँ लेके चलते हैं। मैं आपको ऐसे एक तरीका बता रही हूँ कि अगर कोई आधा सेंटेंस कोई मतलब पूरा नहीं कर रहा, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद मतलब पूरा होता है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। द बॉय फाउंड द बुक विच हैड बीन लॉस्ट। अगर मैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, द बॉय फाउंड द बुक, ये तो अपने में पूरा है ना? द बॉय फाउंड द बुक पूरा है कि नहीं है? नो मैम। पूरा नहीं है। द बॉय फाउंड द बुक, द बॉयज फाउंड द बुक, लड़कों यस को, मैम पूरा। बच्चों को किताब मिल गई, है ना? इट्स फाइन। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ विच हैड बीन लॉस्ट, तो क्या हो गया? जो गुम गई। अब वो जो गुम गई, क्या गुम गई? तो हम पूरा बोलेंगे ना, द बॉयज फाउंड द बुक विच हैड बीन लॉस्ट। वो किताब लड़कों को मिल गई जो गुम गई थी। अब समझ में आता है ना ऐसे कहने यस से? मैम। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कंपाउंड हो गया, जिसमें मैंने आपको ये वाले एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्होंने, ये वाले यूज होते हैं। तो हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिसमें हमारे पास ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर दिया। ही लेफ्ट हिज ऑफिस, ही लेफ्ट हिज ऑफिस एंड ही फिनिश्ड हिज वर्क। बताओ मुझे, ये दोनों अपने में पूर्ण है? पूर्ण है कि नहीं है? हमारे यस पास मैम। ही यस यहाँ पर मैम भी है। है और हमारे पास ही यहाँ पर भी है। हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, हमारे पास प्रेडिकेट यहाँ पर भी है, हमारे पास प्रेडिकेट यहाँ पर भी है। तो ऐसे सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हम जोड़ देते हैं, किससे? एंड से, बट से, और से, सो से, येट से, तो वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं बेटा? कंपाउंड सेंटेंसेस। इतना ध्यान रखो, कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास हम एक से ज्यादा की आइडिया की बात करते हैं। हमारे पास एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, दो सेंटेंसेस हैं जो बिल्कुल अपने में पूर्ण है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे जंप नहीं कर रहे अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए। तो इजी है ना? सिंपल सेंटेंस जिसमें हम एक ही चीज की बात करते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है। यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो है एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, तो दूसरा डिपेंड हो रहा है उस इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे अपने मतलब को पूरा करने के लिए। और कंपाउंड हो गया जिसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा कंप्लीट सेंटेंस है और हमने दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दिया है इस तरह के कंजंक्शन को यूज करके।
अब हमारी क्लास यहीं खत्म कर रही हूँ मैं. इट इज 9:35. ठीक है. Yes. Okay, ma'am. आई शेयर द रिसोर्स मटेरियल्स के साथ. Okay, ma'am. एक मिनट बेटा.